Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 17, and the title of lecture number 17 is Pricing Strategies. Last time we also discussed the basics of pricing, and today we will go into the detail what actually pricing strategies are. The first thing that we will cover in today's lecture is new product pricing strategies. If suppose you are developing new product, how you will make strategies for your new product. Then we will also discuss product mix pricing strategies, and we know what is product mix, so we'll make strategies for product mix. Then we will discuss price adjustment strategies. Suppose due to any reason if you have to adjust your current pricing, so what sort of the options you have, and similarly what sort of the strategies you can make for your price adjustment. Then we will discuss the price changes. Sometimes being a manager, you have to decide this is the time to change or adjust your price. So what are the pros and cons of adjusting your price? What will be the impact of price change on your product as well as on your customer? So we will discuss all these, and finally we will discuss public policy and marketing. That will give you some idea how you can take care of government rule, regulations, legal laws and other things while you are making any strategy for your pricing. So we will start from new product pricing strategies. The first one is market skimming pricing. Market skimming pricing is a strategy with high initial prices to skim revenues layer from the market. In price skimming strategies, we place initially a higher price for our product, and the ultimate objective is to get the maximum profit from the customer. The characteristics of market skimming pricing are product quality and image must support the price. If you want to use the market skimming pricing, it is important your product also support this strategy, and the basic criteria in this regard is your product quality should be very good, and the image that you want to create in the eyes of your consumer, it should be on a better side or on a better side, because customer will not be able to pay a higher price until or unless you are providing a good quality product and having a better image. Then definitely they will pay a higher price. But suppose if your product is not matching with the expectation of your customer in terms of quality as well as in terms of image of the product, then maybe customer will not pay a price that you are expecting from the customer. In simple language, मार्केट स्किमिंग क्या होती है? मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक हायर प्राइस चार्ज करते हैं, और उसके लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग पे जाना चाहते हैं तो उसमें से जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स
वी रिक्वायर इज कि आपकी जो प्रोडक्ट जो सी है वो क्वालिटी की हो, आपका जो इमेज जो है वो यानी कि बेहतर होना चाहिए। इसीलिए उस क्वालिटी और इमेज की वजह से आपका कस्टमर जो है आपको एक हायर प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बायर्स मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट द प्राइस। आपका जो बायर जो है वो आपकी जो यानी कि प्राइस है उस पर प्रोडक्ट खरीदने को भी तैयार हो। एंड नंबर 3, cost of producing the product in small volume should not cancel the advantage of higher prices. Similarly, another thing is, suppose if you want to produce any product at small quantity, your cost of production will not be as high where the advantage that you want to take by selling your product at a higher price. यानी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप कम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रेटजीज में जो है आपकी नेचुरली आपकी क्वांटिटी जो सी है वो कम होती है, आपके जो बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते और इसीलिए आप एक हायर प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हुए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो एडवांटेज जो आप बाय सेलिंग एट ए हायर प्राइस जो आप एडवांटेज लेना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बेशक आप कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो बढ़नी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो सी है वो ये है कि कंपीटिटर्स शुड नॉट बी एबल टू एंटर द मार्केट इजीली। ये भी एक बात है कि ये ना हो कि आप प्रोडक्ट लेकर आए एट ए हायर प्राइस और इमीडिएटली आपका कंपीटिटर भी सेम प्रोडक्ट लेकर आ जाए कम प्राइस पर, तो फिर वो जो आपको एडवांटेज है जो आप लेना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो आपको नहीं रहेगा और आपका कंपीटिटर उसी मार्केट में एंटर होगा विद अ लोअर प्राइस एंड ही इज एबल टू कैप्चर द मार्केट एंड पीपल मे बी नॉट कंटिन्यूस बाइंग योर प्रोडक्ट। इसी को यानी कि मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग हम यानी कि सम अप करते हैं। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप क्या नाम है इनिशियली जो है हाई प्राइस चार्ज करते हैं और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप मार्केट से जो रेवेन्यू है उसको स्किम करना चाह रहे होते हैं। आप फर्स्ट यानी कि मूवर एडवांटेज लेना चाह रहे होते हैं और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की हो, उसका इमेज जो है वो अच्छा होना चाहिए और बायर जो है वो आपकी उस हायर प्राइस पे चीज़ खरीदने को तैयार हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी बेशक आप स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी बढ़नी नहीं चाहिए कि ये ना कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको जो प्राइस की सूरत में आप एडवांटेज लेना चाह रहे हैं वो आपको ना मिले। इसके अलावा आपके जो कंपीटिटर्स जो हैं वो इजीली एंटर ना हो सकें, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर वो आपके कंपीटिटर इजीली एंटर हो जाएंगे तो मे बी वो जो आपको एडवांटेज है वो आपको ना रहे। और अब इसकी बात यह है कि इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी अगेन जो एग्जांपल है जो इमीडिएट मेरे ज़हन में आ रही है, अगेन आप ये देखें कि एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, आईफोन 4 है या आईफोन 5 है, जब वो शुरू में आते हैं तो उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होती है और मे बी विद इन 2 months टाइम पीरियड उसकी प्राइस जो सी है वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 30-35% रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट 6 मंथ में जो है उसकी प्राइस लेस देन हाफ हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो इससे भी कम हो जाती है। विद इन अ ईयर उसकी प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेट जो इनिशियल जो लॉन्च प्राइस होती है उससे कोई 20-25% पे आ जाती है। अब रीज़न क्या है कि एक्चुअली दे आर एबल टू स्कीम द प्राइस द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द बायर्स। शुरू में वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास इनफ मनी है एंड दे लाइक द एप्पल्स प्रोडक्ट, they will go for that product and they will buy at a higher price.
फिर उसके बाद जब उन्होंने कम प्राइस की तो वो लोग जिनके बजट में वो प्रोडक्ट आ रही है फिर वो भी खरीद लेते हैं। फिर जब वो हाफ प्राइस पे आ गई है तो फिर वो लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि जी ये इस ब्रैकेट में आए तो हम इसको खरीदें। तो इस तरह एप्पल दे आर एबल टू गेट द स्किम रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द लेयर्स ऑफ देयर कस्टमर्स। अच्छा, इसके बाद एक और जो स्ट्रेटजी है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। A market penetration pricing sets a low initial price in order to penetrate the market quickly and deeply to attract a large number of buyers quickly to gain market share. अब ये जो strategy जो है that is totally different as compared to market skimming pricing strategy. इसमें क्या है कि इसमें आप इनिशियली जो है एक लो प्राइस के साथ आप मार्केट में एंटर होते हैं और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने मार्केट में पेनिट्रेट करना है, आपने मार्केट को कैप्चर करना है। अब जब आपने मार्केट को कैप्चर करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम में सेल करनी है। यू वांट टू इंक्रीज योर सेल। तो ये आप कोई एक्सपेंसिव या हायर प्राइस पे बेच के तो नहीं कर सकते। नेचुरली आप क्या करेंगे, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको कम करेंगे, आप प्राइस जो है उसको लो रखेंगे एंड देन यू ट्राई टू सेल वॉल्यूम। आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप बेचेंगे एंड दिस विल बिकम मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें भी देखते हैं कि इसमें यानी कि क्या आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और in simple word what will be the characteristics of market penetration pricing strategy. The first one is price sensitive market. In last lecture we discussed what is price sensitive market. Price sensitive market means if you lower your price you are able to sell more. If you increase the price people will not buy your product. Market is sensitive towards the price. अगर आप प्राइस कम करते हैं पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट, अगर आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया है पीपल विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट। अगर ऐसी प्रोडक्ट है देन यू विल गो फॉर मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल्स ग्रोथ। अब दूसरा जो है आपकी जो है आपका जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के दरमियान होता है इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप ज्यादा मीनिंग वॉल्यूम जनरेट करेंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम होना चाहिए। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट टू गो फॉर मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 लो प्राइसेस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट। फिर ये है कि आपका जो लो प्राइसिंग है वो कंपटीशन को वो मार्केट से आउट रखे, आपको आपके मुकाबले में कोई और नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आप जिसको लो प्राइस कह रहे हैं उससे भी कम प्राइस पर आपके कंपीटिटर्स प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो ये सारी जो है ये रिक्वायरमेंट है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। अगेन मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग को सम अप करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें आप जब मार्केट में एंटर होते हैं तो इनिशियली आप अपनी प्राइस कम रखते हैं और उसकी रीजन क्या है कि आपने वॉल्यूम जनरेट करना होता है, आप मैक्सिमम सेल करना चाह रहे होते हैं। यू वांट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट और दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हाई यू आर यूजिंग मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी प्राइस जो सी है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट आपकी होनी चाहिए। आपके क्या नाम है जो प्रोडक्शन है और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इसी तरह आपकी लो प्राइसेस जो है उसमें आपका कंपटीशन जो है उसको आउट होना चाहिए। ये नहीं है कि स्टिल लो प्राइस के बावजूद भी आपका कंपटीशन चल रहा है और आपका कंपीटिटर ही कैन ब्रिंग द सेम प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन विद द सेम इमेज एट ए लोअर प्राइस। अगर वो ऐसा कर लेता है तो फिर आपको मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का एडवांटेज नहीं हासिल होगा।
अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। ये तो अभी जो हमने बात की है, ये तो हमने की है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में फर्स्ट जो है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सेकंड ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, थर्ड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, फोर्थ बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, फिफ्थ प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब we have 5 options from the product mix pricing strategies point of view, and now in the coming slides we are going into the detail of all these options. So the first one, the product line pricing, takes into account the cost differences between products in the line, customer evaluation of their features and competitors prices. अब इसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन होती है, हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट लाइंस में आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप कॉस्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर उनकी डिफरेंट प्राइसिंग यूज कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो देन यू आर यूजिंग प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। फिर उसके बाद एक और होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, टेक्स इनटू अकाउंट ऑप्शनल और एक्सेसरी प्रोडक्ट्स अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट्स। अब आपने क्या किया है कि आप एक बेस प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, उसके साथ आप कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। बेस प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है और अगर आपने उसमें एडिशनल फीचर्स लेने हैं तो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्राइस फॉर दैट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। There is a base price for the basic version of a car, but if you want to add, like you want to add a DVD player in your car, maybe you have to pay extra price for that. If you need alloy rim in your car, maybe you have to pay extra for that. Maybe you need power windows, maybe you need automatic gear system. So these are the additional features. So for that you have to pay separate price of each service if you require. If somebody having the pricing strategies in this way, then we will say this is optional product pricing. और ये होती क्या? takes into account optional और accessory product along with the main product. ये आपकी एक बेसिक प्रोडक्ट होती है, उसकी एक प्राइस होती है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं, ये ऐड करना चाह रहे हैं, साथ ये एक्सेसरी लेना चाह रहे हैं, ये फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस फीचर की एक सेपरेट प्राइस है और वो आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। तो उसको फिर हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अच्छा, इसमें नंबर 3 पर आ रहा है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट दैट मस्ट बी यूज अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। अभी इसकी एग्जांपल कौन सी है? अब इसकी एग्जांपल अगर आप पिक्चर भी देखें, जैसे अब हम एक प्रिंटर लेते हैं, जब हम प्रिंटर की प्राइस पे करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके अंदर हमें कार्ट्रिजेस भी यूज होंगे, उसकी इंक भी यूज होगी। तो ये कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग है कि जहां पर सिर्फ वो ये कहा जाता है कि जी ये प्रिंटर जो है लेट्स से कि ये 5000 रुपीज इसकी वैल्यू है, और जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें उसके साथ उसके कार्ट्रिजेस भी चाहिए होते हैं, हमें उसकी इंक चाहिए होती है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू टेक प्रिंट इवन वी हैव द प्रिंटर। तो ये जो आपकी इस किस्म की होती है कि जहां पर आप, या इसके अलावा एक बहुत यानी कॉमन जो प्रैक्टिस है जो जिलेट यूज करता है, रेजर आपको दे देते हैं और सम टाइम उसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल होती है, लेकिन जब आप उसके बाद ब्लेड्स लेने जाते हैं तो वो आपको काफ़ी कंपैरेटिवली उसकी प्राइस आपको ज़्यादा चार्ज की जाती है। तो दिस इज अ कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग वेयर एक्चुअली दे आर गिविंग यू वन थिंग बट देयर इज associated cost is there. Okay, if you want to use this product then you have to buy some other accessories or मीनिंग प्रिंटर है तो उसके केस में कार्ट्रिजेस है, रेजर है तो उसके केस में आपको ब्लेड्स चाहिए,
तो ये जो है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा एक और आपकी आती है दैट इज बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, refers to products with little or no value produced as a result of the main product. Producer will seek little or no profit other than the cost to cover storage and delivery. बाज़ बात ये भी होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अब आपने वो प्रोडक्ट तो खरीद ली, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसको जो स्टोरेज है या उसको मेंटेन करना, उसकी भी एक कॉस्ट होती है। अब उस केस में क्या होता है कि जो आपका जो सेलर होता है वो बाज़ औक़ात उसको आपकी प्राइस में एडजस्ट करता है ताकि उसकी जो वो एक जो प्रॉब्लम है बाई प्रोडक्ट की उसको मिनिमाइज किया जा सके। और वो क्या करता है कि आइदर ही विल मैनेज इन द प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट और ही विल कंपनसेट यू बाय मैनेजिंग द बाई प्रोडक्ट और वेस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसको हम फिर कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके अलावा एक और जो है जो कि काफी कॉमन है इन सर्टेन सेक्टर्स में, दैट इज प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स एट ए रिड्यूस प्राइस। अब आप इसमें क्या करते हैं कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी से मुराद ये है कि आप 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक आप पैकेज बना देते हैं और उसमें आप अपने कस्टमर को अट्रैक्शन देते हैं कि बाय पेइंग दिस मच ऑफ प्राइस यू आर एबल टू गेट दिस एंड दिस। सो कस्टमर हैविंग मोर इंटरेस्ट and he is ready to pay because he is paying a reasonable price and he is able to get 4 or 5 products। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब यहाँ पर यह आता है कि जी इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी फास्ट फूड पे जाएं तो उनका अगर आप मेन्यू देखें, वो आपको कहते हैं कि जी अगर आप एक यानी कि बर्गर लेंगे उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिलेंगी, उसके साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा और हो सकता है उसके साथ वो कोई आइसक्रीम भी अटैच कर दें, कीपिंग इन माइंड कि जी कौन सा मौसम चल रहा है। समर है आपको आइसक्रीम ऑफर कर दें, विंटर है तो उसके साथ आपको कह दें जी ओके हॉट ड्रिंक इज ऑल्सो अवेलेबल एंड द प्राइस ऑफ दिस पैकेज इज। या किसी और में आप चले जाएं जहां पर होता है कि जी अगर आप क्या नाम है ये चीज़ लेंगे, यानी कि समटाइम्स विद पिज़्ज़ा, कि अगर आप पिज़्ज़ा लेंगे उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, ठीक है, उसके साथ अगर आप लार्ज साइज ले रही हैं तो उसके आपको स्मॉल साइज जो है वो फ्री मिलेगा। तो अब ये क्या है कि ही इज मेकिंग हिज ऑफर मोर वैल्यूएबल। हाउ? बाय बंडलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उस बंडल की फिर एक सिंगल प्राइस होती है, उसमें ये नहीं होता कि जी इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, अगर मैं ये ना लेना चाहूँ इसको मैं तो फिर मुझे कितना मिलेगा। नहीं, it's a package and you have to pay the price of the package and they will give you 3, 4, 5 items whatever be included in that package। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। फिर उसके बाद आती है आपकी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अब प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में भी देयर आर 7 different types of strategies। The first one is discount and allowance pricing। Discount and allowance pricing and discount and allowance are two different things। Then we have the segmented pricing। The third one is psychological pricing and fourth one is promotional pricing। Fifth one is geographic pricing, sixth is dynamic pricing, 7 is international pricing। अब ये क्या है कि there are 7 options when we talk about the price adjustment strategies and now we will go into the detail and we will discuss one by one कि ये क्या चीज़ है। हम कोशिश करेंगे इसको समझने की कि ये जो स्ट्रेटजीज जो सी हैं ये क्या है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन टर्म्स एंड कंडीशन या सिचुएशन में आप इसको यूज़ करेंगे।
The first one is discount and allowance. Discount and allowance pricing reduces prices to reward customer responses, such as paying early or promoting the product. अब इसमें क्या है कि आप अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग आइदर डिस्काउंट और अलाउंसेस। अब डिस्काउंट में क्या होता है, एक आपका सिंपल होता है कैश डिस्काउंट, या आप कहते हैं जी ओके इफ यू बाय दिस यू विल बी एबल टू गेट 5% कैश डिस्काउंट, उसकी जो प्राइस उसमें से आप 5% कम कर दें। या समटाइम्स देयर इज अ फिक्स्ड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹10 ऑफ एवरी आइटम, उसकी जो भी प्राइस है उसमें से 10 रुपए कम हो जाएंगे। अलाउंस उसके मुकाबले में क्या है कि आप ये, और अलाउंस जो है नॉर्मली ये यूज़ किए जाते हैं आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है इसमें ये होता है कि आप क्या नाम में पहले कोई भी आप परचेज करेंगे, उसके बाद आप उसका यानी कि बताते हैं कि जी हमने ये परचेज कर लिया, और उसके बाद वो आपको सर्टन अलाउंस उस पर ऑफर कर देते हैं कि जी ओके इफ़ यू स्पेंड दिस मच ऑफ अमाउंट और इफ़ यू आर बाइंग दिस वन, इस पर इतना अलाउंस है, यानी कि वही इन द फॉर्म ऑफ ए लोअर प्राइस, ये आपको हम 10 रुपीज़ ऑफ कर देते हैं या आपको 10% कम कर देते हैं, या आपका ये आपको इसके अगेंस्ट एडवांटेज है। ये तो आपका है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग रिड्यूसिंग प्राइसेस टू रिवॉर्ड कस्टमर्स रिस्पॉन्सेज सच एज पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग दी प्रोडक्ट। अब इसके अलावा एक आपका आ रहा है डिस्काउंट्स और इसमें आ रहा है एक अलाउंस। डिस्काउंट तो आपके जो से होते हैं नॉर्मली आप जब भी कोई प्राइस कम कर देते हैं वो आपके डिस्काउंट होते हैं। अलाउंसेस ये भी हो सकते हैं कि जी आपने कोई चीज़ खरीदी है उसके अगेंस्ट वो एक आपको एक 10% का एक आपको अलाउंस दे देते हैं कि इफ़ यू बाय द नेक्स्ट प्रोडक्ट यू विल बी एबल टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए वाउचर। ठीक है, आपको कोई और ऑफर दे देते हैं, तो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन द डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। अच्छा, उसके अलावा एक और है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में आपका नंबर 2 पे आ रहा है सेगमेंटेड प्राइसिंग। Segmented pricing is used when a company sells a product at 2 or more prices even though the difference is not based on cost. अब कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट जो सी है वो सेम है लेकिन वो उसको डिफरेंट प्राइसेस में बेच रही है। अब उसकी भी रीजंस होती हैं, और इसकी पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट कैन वर्क। देखिए, जब आप किसी भी म्यूज़ियम पे जाते हैं या किसी भी यानी कि हिस्टोरिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो प्लेस रिमेन द सेम, म्यूज़ियम रिमेन द सेम, बट देर आर डिफरेंट प्राइस फॉर द टिकट्स। लाइक दिस इज़ अ स्टूडेंट टिकट, दिस इज़ फॉर द यानी कि जनरल विजिटर्स, एंड दिस इज़ फॉर द एल्डरली और सीनियर सिटीजन। अब क्या है कि वही म्यूज़ियम है, वही आपकी हिस्टोरिक प्लेस है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एक डिफरेंट प्राइस पे कर रहे हैं, जनरल पब्लिक आ रही है डिफरेंट प्राइस पे कर रही है, आपके सीनियर सिटीजन है वो डिफरेंट प्राइस पे कर रही हैं, और मे बी एट सर्टन एज द चिल्ड्रंस आर फ्री। तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग, कि आपने किसी भी बेस पर आपने उनको डिवाइड कर दिया, then the product remain the same but you are different prices. You are not charging the same price to all, you are charging different prices for the different segments of the people. उसको हम कहते हैं segmented pricing strategy. अच्छा, अब ये टू बी इफेक्टिव मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल। ये कहाँ पर आपकी यानी कि कामयाब, जहाँ पर आप मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकें, उसमें सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकें। अगर वो सेगमेंटेबल नहीं है देन यू कांट यूज दिस स्ट्रेटेजी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है सेगमेंट्स मस्ट शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिमांड। फिर ये भी जरूरी है कि जो आपके जो सेगमेंट है उनकी डिमांड भी डिफरेंट होनी चाहिए।
फिर उसके अलावा वॉचिंग द मार्केट कैन नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस। एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो वो मेंशन कर रहा है कि वॉचिंग द मार्केट कैन नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस। ये भी नहीं होता कि आपकी जो है कि आप कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू बना रहे हैं कि बाय डूइंग द सेगमेंटेशन, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने डिफरेंट सेगमेंट्स को एडजस्ट करना होता है, अकोमोडेट करना होता है, लेकिन आप क्या नाम में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बना रहे होते, या जो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट की होती है उससे ज़्यादा आप उसको जनरेट नहीं कर रहे होते। मस्ट बी लीगल। और उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं, प्राइस सेगमेंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, ये लीगल होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पर कोई शख्स ये कि जी मुझे तो इन्होंने ये बेनिफिट नहीं दिया और इसी मेरे तरह का एक और बंदा उसको ये एडवांटेज दिया, कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ इलीगल नहीं होनी चाहिए। आपके जो सेगमेंट जो हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए। इसीलिए जो पहली बात जो कही गई है वो यही है कि मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल। जब स्टूडेंट्स हैं, एवरीबॉडी नोज कि हाउ वी कैन चेक द स्टूडेंट। इफ ही हैज़ अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल कार्ड, ही इज़ अ स्टूडेंट। अगर किसी के पास नहीं है तो देन यू कैन कंसीडर हिम और हर एज अ स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो सी अगर आप इसकी बेसिस पे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो ये आपकी सेगमेंटेड प्राइसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग occurs when sellers consider the psychology of prices and not simply the economics। अब यहाँ पर क्या है कि आपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी देखनी होती है। अब आप कोई इकोनॉमिक्स या कोई और क्राइटेरिया नहीं देख रहे, आप साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्या है कि समटाइम्स वी आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस। अब जो परफ्यूम है, अब नॉट नेसेसरली कि अगर किसी परफ्यूम के मैं 5000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो उसकी वर्थ वाकई 5000 रुपीज़ है। मे बी उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या उसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपीज़ हो, लेकिन क्योंकि अगर वो उस परफ्यूम को 5000 पे नहीं बेचेंगे तो मे बी कस्टमर विल नॉट बी एबल टू बाई एट अ प्राइस ऑफ 500 रुपीज़, because maybe he have an understanding or feeling कि maybe this perfume is not a quality product, but having a price tag of 5000 rupees with a nice smell, good packing, maybe customer perceive कि this is a quality or high quality or good perfume। तो यही चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली जो है जब आप उसको कस्टमर को एवेल्युएट करते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं, और उसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपकी प्राइस कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं करे तो वो यही समझता है कि या तो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और या देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए आपको एक स्पेसिफिक प्राइस टैग उस प्राइस प्रोडक्ट पे आपको लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसके अलावा रेफरेंस प्राइसेस आर प्राइसेस दैट बायर्स कैरी इन देयर माइंड्स एंड रेफर्स टू व्हेन लुकिंग एट ए गिवन प्रोडक्ट। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम सारों के माइंड में एज ए कस्टमर एक रेफरेंस प्राइस होती है। मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ तो मेरे माइंड में एक नेचुरली एक प्राइस होगी कि इट विल कॉस्ट मी लाइक 40,000, 50,000, 100,000 रुपीज़, और इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ यूज लैपटॉप तो मे बी 20-25,000 इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर ए यूज लैपटॉप। ठीक है, तो अब ये मेरे जेहन में अब इस पे एक चीज़ किस चीज़ पे बेस कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। सिमिलरली आपके जेहन में है कि जी यानी कि लेट्स से कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल है, कि उसकी ये प्राइस होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि जी रेफरेंस प्राइस, एक्चुअली द प्राइस दैट बायर्स कैरी इन देयर माइंड्स। अब उसमें क्या है, ये सारी जो उसकी रेफरेंस प्राइस होती हैं कस्टमर्स के, जो उसके माइंड में जो रेफरेंस प्राइसेस होती हैं, ये एक्चुअली बेस कर रही होती हैं किस चीज़ पर, कि नोटिंग करंट प्राइसिंग,
कि वो मार्केट गया, उसने वहाँ पर प्राइसेस चेक की, उसको अंदाज़ा हो गया कि ही हैज़ सम आइडिया कि ये जो प्रोडक्ट लैपटॉप जो से मार्केट में इस रेंज में मोस्टली अवेलेबल है, हायर भी है लोअर भी है, लेकिन ये जो है ये इस रेंज में है। मोबाइल मार्केट में गया, वहाँ मोबाइल उसने चेक किए एंड ही इज़ एबल टू नो कि लेट्स से कि जी मैं आई कैन बाई अ वेरी गुड लेटेस्ट मोबाइल इन द प्राइस रेंज ऑफ 20,000। ठीक है कि 20,000 में मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन लेटेस्ट डिज़ाइन का मिल सकता है। अब यूज़ किया, अब जब वो दोबारा जाएगा तो अगर तो ये चीज़ें सारी उसके मुताबिक मैच करेंगी या वो साथ कंपैरिजन करेगा, वो लैपटॉप या मोबाइल उठाएगा उसके बाद पूछेगा कि जी इसकी प्राइस क्या है। अगर तो वो मोबाइल अच्छा है और उसकी प्राइस जो सी है 18-20,000 है तो वो उसकी उसमें रेंज में आ रही है एंड ही विल नॉट हैव एनी इशू। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो प्राइस जो सी है वो उसकी रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा है तो ही विल नॉट मेक अ डिसीजन। तो इसी तरह ये है कि नोटिंग करंट प्राइसेस, रिमेम्बरिंग पास्ट प्राइसेस। ये भी हो सकता है कि उसने कोई पहले कोई प्रोडक्ट खरीदी हो या उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो बाय सर्चिंग, बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब उसके माइंड में है कि ये चीज़ इतने की होती है कि मैंने लास्ट टाइम ली थी तो इतने की थी, मेरे दोस्त ने ली थी उसने मुझे बताया। अब ये क्या है कि रिमेम्बरिंग पास्ट प्राइसिंग। फिर असेसिंग द बाइंग सिचुएशन। एक और भी चीज़ है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप कहाँ पर उसकी प्राइस को असेस कर रहे हैं। सपोज अगर मैं क्या नाम है किसी कोई सेल लगी हुई है, ऑफर लगी हुई है, अब उसमें जो से मैं प्राइस असेस करूंगा तो दैट विल नॉट बी द सेम प्राइस, आई विल एक्सपेक्ट अ लोअर प्राइस। बट सिमिलरली इफ आई एम एंटरिंग इन वेरी एक्सपेंसिव और in a store where I expect the prices will be on the higher side, so naturally I will have a reference price comparatively higher because I know that this is the market where everything is 15-20% charging more price. So naturally जो मोबाइल 18 या 20,000 का यहाँ पर वो 22 या 25,000 का मिलेगा। तो दिस इज असेसिंग द बाइंग सिचुएशन कि आप किस तरह वहाँ पर उसको असेस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग है स्ट्रेटजी जो सी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में, दैट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर टेम्पररी प्राइस्ड बिलो लिस्ट प्राइस और कॉस्ट टू इंक्रीज डिमांड। अब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करना होता है, यू वांट टू मूव योर प्रोडक्ट फ्रॉम द शेल्फ। आप चाहते हैं कि आपकी सेल इंक्रीज हो, पीपल विल बाय मोर योर प्रोडक्ट। अब उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि वो क्यों आप करते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग, किन हालात में की जाती है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, वी विल डिस्कस। बट फर्स्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर टेम्पररी प्राइस बिलो लिस्ट प्राइस और कॉस्ट टू इंक्रीज डिमांड। कि आपकी जो लिस्ट प्राइस है कि जिसमें सपोज आपने ये एक प्रोडक्ट 1000 की बेचनी थी लेकिन अब आप उसको 800 का बेच रहे हैं, या आपकी जो है आपकी जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट आ रही है लेट्स से कि जी 800 रुपीज़ आ रही है और आप प्रोडक्ट को 750 रुपीज़ का बेच रहे हैं बिलो दी कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। अब उसका क्या था, लॉस लीडर्स एक ये रीज़न हो सकती है, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग हो सकती है, कैश रिबेट्स हो सकते हैं। अब ये है कि क्यों आप ये करते हैं, एक तो एक लॉस लीडर्स के ये हो सकता है कि आप क्या नाम है आपकी जो स्टैंडिंग थी पोजीशन थी वो आप लूज़ कर रहे हो, तो आप एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप कहते हैं प्राइस कम करें ताकि दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लो। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग की कोई स्पेशल इवेंट है वहाँ पर अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि स्कूल में आपने किसी स्कूल में, किसी चैरिटी में, किसी फन फेयर में लगाए और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जी वी विल सेल एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम हेयर बट वी जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस और वी वांट टू सपोर्ट द कॉज ऑफ दैट इवेंट। कैश रिबेट्स बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने यानी कि कैश रिबेट्स दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आप अगर ख़रीदेंगे लेट्स से कि प्रोडक्ट 1000 की है लेकिन अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो आपको इमीडिएट 200 रुपीज़ का एक वेवर मिल जाएगा प्राइस रिडक्शन।
कैश रिबेट्स देते हैं। रिबेट्स जैसे वैसे नॉर्मली ये होता है कि उसके लिए पहले आपको उसी प्राइस पर, जो रिबेट हम जब बात करते हैं नॉर्मली जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले आप वो परचेज करें, उसके बाद आप उसको क्लेम करते हैं। और उसके लिए ये होता है कि आपको अपना प्रूफ भेजना पड़ता है कि जो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदी है, उसका कोई भी उसका रैपर है, उसका कोई कैप हो सकती है या उसकी रिसीट हो सकती है, वो आप उस कंपनी को भेजते हैं एज ए प्रूफ के जी मैंने प्रोडक्ट खरीदी है, और उसके बाद वो कंपनी जो सी है वो आपको उसका रिफंड भेज देती है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं कि जहाँ पर फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उनको कह सकते हैं कि मार्केट रेट जो है फॉर दिस फाइनेंसिंग पैकेज इज, लेट्स से मार्केट में फाइनेंसिंग हो रही है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 10% पे हो रही है, एंड वी कैन अरेंज अ वेरी गुड फाइनेंसिंग रेट एंड दैट इज अराउंड 7%. दिस इज एन अदर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रमोशनल प्राइसिंग. बाज़ का आप क्या कहते हैं, लॉन्गर वारंटीज. आप कहते हैं कि जी प्राइस वही है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अब ये है कि हम आपको 1 साल की बजाय 3 साल की फ्री वारंटी दे रहे हैं, कि नॉर्मली 1 साल की होती है, लेकिन जस्ट टू प्रमोट, जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस, तो 3 साल तक आपको कोई मसला ही नहीं है. एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो आप इस तरह जो है लॉन्गर वारंटीज देकर या लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग अरेंज करवा कर या कैश रिबेट्स देकर या स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, दिस इज अ स्पेशल इवेंट प्राइसिंग फॉर योर इवेंट और लॉस लीडर्स, ये स्ट्रेटजीज आप यूज करके आप प्रमोशनल प्राइसिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. बाज़ का एक और भी होता है कि आप कहते हैं ये फ्री मेंटेनेंस. सपोज आपने कोई होम अप्लायंस खरीदा है, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जी ओके 1 साल तक आपकी जो भी मेंटेनेंस होगी दैट इज फ्री एंड कंपनी विल बियर द एक्सपेंसेस. तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि एक बंदा है वो कह रहा है कि जी ठीक है ये प्रोडक्ट है लेकिन मेंटेनेंस वारंटी वगैरह हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा उसी प्राइस पे बेच रहा है लेकिन वो साथ आपको अश्योरेंस दे रहा है कि जी वारंटी भी दे रहा हूँ मैं आपको, फ्री मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ एंड वी विल टेक केयर ऑफ योर यूनिट. तो ये भी क्या है, ये सारी आपकी आएंगी प्रमोशनल प्राइसिंग में. अब रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग. Used too frequently and copies by competitors can create deal prone customers who will wait for promotions and avoid buying at regular price. अब देखिए अगर आप यही जो प्रमोशनल प्राइसिंग जो है इसको अगर आप रेगुलर यानी कि कंटिन्यूस यूज करते हैं तो एक तो ये बात है कि आपका कंपटीटर भी उसको कॉपी कर सकता है, जाहिर बात है वो भी देख रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं आपका कंपटीटर्स भी काम शुरू कर देगा, फिर वो जो आपको जो एज है वो आपको वो एज नहीं रहेगा. देखिए ना, एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज की प्रोडक्ट है, 1 ईयर्स की वारंटी है, 1 ईयर्स की फ्री मेंटेनेंस है, एवरीबॉडी इज ऑफरिंग द सेम ऑफर कि जी 10,000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 ईयर फ्री वारंटी, 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस, देन देयर विल बी नो डिफरेंस. देन यू कांट से दिस इज द प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी until or unless you are offering something extra. तो यहाँ पे भी ये है कि आप कोई वो काम नहीं करते कि जिसको क्या नाम है आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करें या आपका कंप्यूटर उसको कॉपी कर ले. अच्छा, इसका एक और क्या होता है, क्रिएट्स प्राइस वॉर्स. अगर आप प्रमोशनल इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इट क्रिएट प्राइस वॉर. प्राइस वॉर्स मीन्स कि अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि 1000 से 800 कर दी, आपको कंप्यूटर जो 750 की कर देता है. अब आप क्या करेंगे, आप 700 की करेंगे वो 650 की कर देता है, आप 600 की करेंगे वो 550 की कर देता है. दिस इज प्राइस वॉर कि वेयर यू विल स्टॉप. तो बाज़ का ये भी इशू आ जाता है कि कंपटीटर जो है इन कंपटीशन दे स्टार्ट लोअरिंग देयर प्राइसेस. फिर उसके बाद एक और जो है आपकी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज, दैट इज जियोग्राफिकल प्राइसिंग. अब जियोग्राफिकल प्राइसिंग इज यूज्ड फॉर कस्टमर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड. अब क्या है कि आपकी इन्हीं के जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं दैट इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, वन सिटी, वन मार्केट. नाउ यू हैव द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड. अब इसमें क्या एक आपकी होती है FOB, ओरिजिन प्राइसिंग.
FOB स्टैंड फॉर फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं, बाज़ को फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एक आपकी स्ट्रेटजी होती है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो वन टर्मिनोलॉजी वी यूज के जी FOB ओरिजिन प्राइसिंग। सेकंड इज यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। These prices remain the same no matter where you want to take, ठीक है। एक तो पहली जो सी होता है ना ओरिजिन प्राइसिंग है जी, यहाँ पर लेट्स से कि जी इस सिटी में या इस कंट्री में ये प्राइस है, अब आपने जहाँ लेकर जानी वो आपका दर्द सार है, वो आपने डिसीजन लेना है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, देखिए जी प्राइसेस यही है, आप जहाँ मर्जी डिलीवरी ले लें। फिर उसके बाद एक और जोन प्राइसिंग, कि यू अगेन डिवाइड द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स, कि जी इस जोन में ये प्राइस है, लेट्स से कि जी एशिया के लिए ये प्राइस है, यूरोप के लिए ये प्राइस है, अमेरिका के लिए ये प्राइस है, विद इन एशिया फॉर ईस्ट के लिए ये प्राइस है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये प्राइस है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के लिए यू हैव अ सेपरेट प्राइस। सो इफ यू आर डिवाइडिंग यूर pricing strategy on the basis of different zone, then it will become zone pricing. The next one is the basing point pricing. Again, if you are dividing your geographic location on the basis of certain location, ये आप कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये हमारा ये सिटी जो है ये हमारा बेस है, इसमें प्राइस जो है ये होगी, और इससे आगे जो है आपने जहाँ कहीं पे लेकर जाना है दैट विल बी मीनिंग कि यू विल पे द एक्स्ट्रा और यू विल अरेंज योर ओन अरेंजमेंट। उसको हम कहते हैं बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, कि आपने एक बेस डिसाइड कर दिया है कि ओके वी विल गिव यू द प्रोडक्ट एट दिस लोकेशन, लाइक कि जी योर प्रोडक्ट विल बी इन दुबई एट दिस प्राइस। अब आप दुबई से अमेरिका लेकर जाने हैं, यूरोप लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान लाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में, उसको फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर फ्री एब्जॉर्बेशन प्राइसिंग, ये जो होता है इसमें क्या है कि आपका जितना भी जो आप यानी कि जो आपको फ्रीड के जो एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो सेलर है वो पार्शियल या फुली उसको पे कर रहा होगा। ये तो मैंने आपको जल्द क्विकली इन्हीं कोशिश की है कि आपको सिर्फ पढ़ के ही ना सुना दूं बल्कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगेन मैं इन्हीं की आपको डेफिनेशंस दूंगा ताकि आपके पास कोई मटेरियल हो आपको याद रखने रेफरेंस के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो FOB ओरिजिन प्राइसिंग जो सी है ये क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग मीन्स दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द लिटिल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस टू द कस्टमर, कि आपको प्रोडक्ट्स जो सी हैं, आपकी जो गुड्स जो सी हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन उससे आगे आपने यहाँ कहीं लेकर जाना है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। जो चीज़ खरीद रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, हम उसको फ्री ऑन बोर्ड ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग मीन्स द कंपनी चार्जेस द सेम प्राइस प्लस फ्री टू ऑल कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। ये प्राइसेस सेम होंगी फ्री, और वो उसमें कोई ये नहीं है कि जी कस्टमर यूरोप का है, एशिया का है, क्या है, सबके लिए यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग है। Zone pricing means that the company set up 2 or more zones where customer within a given zone pay a single total price। कि वही कि आपने उसको जोन में डिवाइड कर दिया कि दिस इज 1 जोन, दिस इज 2 जोन और 3 जोन, उस जोन में ये प्राइस है, इस जोन में ये है, इसमें ये। अब आपने अगर वहां से कहाँ लेकर जाना है, तो जहां से आपको बेस्ट सूट करता है आप उस जोन की प्राइस लेकर वहां से उस प्रोडक्ट को आप मंगवा लें। Basing point pricing means that a seller selects a given city as a basing point and charges all customers the freight costs associated from that city to the customer location regardless of the city from which the goods are actually shipped। ठीक है, उसने आपको एक मिनी बेसिंग पॉइंट दे दिया है। वो जरूरी नहीं है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी उसी सिटी या उसी कंट्री में हो, लेकिन मुझे कह रहा है कि वहां से आपको जो प्रोडक्ट है मिल जाएगी और इस प्राइस पे मिलेगी।
उससे आगे आपने जो लेकर जाना है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल पे अ सेपरेट प्राइस फॉर दैट। फिर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में जो लास्ट वन हमने डिस्कस किया दैट इज फ्रीड एब्जॉर्बेशन प्राइसिंग मींस द सेलर एब्जॉर्ब ऑल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल फ्रीड चार्जेस एज एन इंसेंटिव टू अट्रैक्ट बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। उन मार्केट में जहाँ पे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर बाज़ औक़ात सेलर्स क्या करते हैं, वो जो कॉस्ट ऑफ यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है वो उसको या तो फुली या पार्शली वो उसको शेयर कर लेते हैं कि जी ठीक है इसकी जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो लेट्स से कि 100,000 आ रही है तो 75,000 हम पे कर देंगे, 25,000 आपने पे करना है या 100,000 हम आपको पे कर देंगे। अब क्या होगा कि इस ऑफर की वजह से द सप्लायर विल बिकम मोर competitive एज कंपेयर टू द अदर। नेचुरली वो अब आपको प्रोडक्ट भी दे रहा है सेम क्वालिटी सेम प्राइस पे प्लस आपके साथ वो शेयर कर रहा है या आपके एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के। अच्छा इसके अलावा एक और जो सा दैट इज डायनेमिक एंड इंटरनेट। डायनेमिक प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर एडजस्टेड continually to meet the characteristics and needs of the individual customer and situation। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपको अपनी प्राइसेस को जो है रेगुलर बेसिस पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि यू आर यूजिंग द डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कि जहाँ पर आपको अपनी प्राइसिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे यानी कि डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। अच्छा उसके अलावा प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में एक और क्या इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर सेट इन अ स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड ऑन कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब आप ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो है वो सेम हो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है सेम है लेकिन वही प्रोडक्ट एक कंट्री में किसी और प्राइस पे बिक रही है, किसी और कंट्री में उसकी प्राइस डिफरेंट है, एक तीसरे कंट्री में उसकी प्राइस और हो सकती है। अगर आप इस किस्म की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग और उसके अंदर सर्टन उसके फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से आपने कह दिया कि जी चाइना में ये प्राइस है, मिडल ईस्ट में ये कर देते हैं, पाकिस्तान में ये कर देते हैं, अमेरिका में ये कर दें, यूनाइटेड किंगडम में ये प्राइस कर दें। नो, देयर आर सर्टन रीजंस कि व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग। अब वो जो फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस, वी नो ऑल द कंट्रीज दे डोंट हैव द सेम इकोनॉमिक कंडीशंस, तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक आपको प्राइसिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। सिमिलरली कंपेटिटिव कंडीशंस, बाज़ औक़ात ये है कि आपके मुकाबले में जो बाकी जो है सूरत हाल अब वो ऐसी है कि अगर आप अपनी प्राइस को एडजस्ट नहीं करते तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू गेन मार्केट एक्सेप्टेंस। आइकिया का इसमें कहा जाता है, जैसे आइकिया ने जब चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आइकिया जो है स्वीडिश बेस्ड यानी कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्नीचर या होम इंटीरियर या इसकी बनाती है, मेनली इनके आता है फर्नीचर आता है, लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं, इंटीरियर्स के आपके हैं, आपने होम इम्प्रूवमेंट उस सिलसिले में इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये मोस्टली फ्लैट पैक होती हैं, आप उनको असेंबल करते हैं, यूज़ करते हैं। जब मैंने चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो इनिशियली लोग आते थे, डिज़ाइन देखते थे और वही चीज़ें जो चाइनीज़ मार्केट में कम प्राइस पे उनको अवेलेबल थी वो ख़रीद लेते थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी कम कर दी एज़ कम्पेयर टू इवन अदर कंट्रीज just to compete with the local seller, or finally IKEA is able to gain market share from the Chinese market। तो ये होता है कि बाज़ का आपके कंपैरेटिव कंडीशन जो सी हैं वो ऐसी नहीं होती
कि जहाँ पर आपको एडवांटेज ले सकें, तो आपको अपनी प्राइसिंग जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लॉज एंड रेगुलेशन, समटाइम्स देयर आर सर्टेन लॉज एग्जिस्ट, रेगुलेशंस आर अवेलेबल, कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी है या गवर्नमेंट के सर्टेन रूल्स हैं कि जी आप इससे कम पे नहीं बेच सकते, इससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकते, या आपको ये टैक्स पे करना है, तो नेचुरली यू विल एडजस्ट योर प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू दी country to country. The next is the infrastructure. Again, infrastructure is very important and you have to take care of the infrastructure. Just because of the infrastructure, and we all know that it varies from one country to another country. तो जब एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेरी करता है, तो फिर वहाँ पर आपको अपनी प्राइसिंग को भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी मार्केटिंग, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक जो कंपनी जो सी है वो अपने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, टेक्निक यूज़ कर रही है, या लेस एफर्ट कर रही है, या उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो नेचुरली अब आपकी जो मार्केटिंग जो कॉस्ट है वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी प्राइसिंग में। तो ये सारे जो से ना आपके स्पेसिफिक यानी कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस जो है वो वेरी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो है वो ये कि आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेचुरली यू आल्सो हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, और अगर आपके कोई है, जैसे सपोज आपने अगर मार्केट को कैप्चर करना है, या आपने वही जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप क्या नाम है मार्केट में लॉन्ग टर्म है या आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आप अपनी प्राइस को सेट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में। अच्छा, उसके अलावा अब एक और जो चीज़ है दैट इज इनिशिएटिंग प्राइसिंग चेंजेस। अब अगर हमें किसी भी वजह से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करना पड़े, तो हमारे पास क्या है, दो ही ऑप्शन है, या हम प्राइस इंक्रीज करेंगे या हम प्राइस डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप प्राइस इन डिक्रीज कर रहे हैं, जिसको हम क्या आल्सो कहते हैं कि जो प्राइस कट्स अकर ड्यू टू, तो इसकी क्या रीजन होती है कि आप प्राइस जो है क्यों कर रहे हैं। एक्सेस कैपेसिटी इंक्रीज मार्केट शेयर, बाज़ औक़ात आपकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो आपकी एक्सीड कर जाती है, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर। ठीक है, आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि गेन कर लिए कि नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग एट ए हायर लेवल एट ए लोअर कॉस्ट। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो जो हमने पढ़ा था कि जी आपके फिक्स कॉस्ट तो वही वेरिएबल कॉस्ट ही है। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं, तो यू कैन प्रोड्यूस एट ए लोअर कॉस्ट। तो एक्सेस कैपेसिटी होगी तब आप अपनी प्राइस कम कर देंगे, या आपने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, वही मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी जो हमने पढ़ी थी। तो दोनों सूरतों में आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। और प्राइस इंक्रीज हम कब करते हैं, प्राइस इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपकी किसी भी किस्म की कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, यूटिलिटीज जो सी आपकी एक्सपेंसिव हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी नेचुरल गैस है, या कोई और आपके वो आपके चार्जेस बढ़ गए हैं, तो नेचुरली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, तो आपकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। बात ये होता है कि यू आर एबल टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। इफ द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, naturally you also increase the price of your product because the amount of production is remain the same, but now you have to fulfill the requirement of your market. तो आप क्या करेंगे कि फिर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज कर देंगे ताकि आप वो एडवांटेज ले सकें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है और अब आप ये चाहते हैं कि जी क्यों ना मैं अपनी प्राइस भी इंक्रीज करूं ताकि आई कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट। द थर्ड वन इज लैक ऑफ सप्लाई। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी वजह से आपकी सप्लाई कम हो जाती है, अब आपके पास उतना आइटम नहीं है और आप जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा नहीं कर सकते, तो आप फिर क्या करेंगे कि आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर देंगे ताकि उतने ही लोग उसको ख़रीदें, और जो ख़रीदें तो आपको कम से कम उसमें से मार्जिन मिले
और ये वही चीज़ है कि सम सॉर्ट ऑफ जहाँ पर आप अपनी प्राइस को ज़रा ऊपर कर देते हैं, हायर कर देते हैं, प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो लैक ऑफ सप्लाई है उसको आप कवर अप कर सकें। जब बायर्स रिएक्शंस क्या हो सकता है टू प्राइसिंग चेंज? अगर आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट इज हॉट, कंपनी ग्रीड, दो ही बातें हैं। अगर आपने प्राइस इंक्रीज की है तो एक तो कस्टमर ये कहेगा यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत बिक रही है, बहुत डिमांड में है, या सेकंड वो ये कहेगा जी कंपनी जो सी है वो बहुत यानी कि ग्रीडी टू से लालची हो गई है, दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। प्राइस कट्स जब आप करते हैं तो इसमें क्या है कि न्यू मॉडल विल बी अवेलेबल, फौरन एक ही चीज़ आ रही है कि जिसकी प्राइस कम कर दी है, इसका मतलब है न्यू वर्जन आ रहा है, न्यू मॉडल आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने इसकी प्राइस कम कर दी है। मॉडल्स आर नॉट सेलिंग वेल, एक ये भी होता है कि जी ये जो प्रोडक्ट जो सी है ये मार्केट में बिक नहीं रही है, इसलिए अब इन्होंने प्राइस कम कर दी है और ये उसको बेचना चाह रहे हैं, जो प्राइस थी उस पर ये बेच नहीं पा रहे, अब प्राइस कम करके उसको बेचना चाह रहे हैं। क्वालिटी इशू समटाइम्स ये भी होता है कि जी प्राइस कम हुई है, इसका मतलब है कि इन्होंने क्वालिटी भी इसकी कम कर दी होगी, ठीक है, कि मे बी दे आर प्रोड्यूसिंग लोअर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग दी प्राइस। तो इस किस्म के जो कंसर्न्स होते हैं जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं ताकि आप उनको एड्रेस कर सकें और वो आपके लिए इशू ना बने। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस, अब ये है कि अगर आपकी प्राइस चेंजेस हो रही हैं तो आपने कुछ अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाई डिड द कंपैरेटर्स चेंज प्राइस? अगर आपका कंपैरेटर प्राइस चेंज करता है तो यू विल आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि व्हाई ही चेंज। सेकंड, इज द प्राइस कट परमानेंट और टेम्परेरी, कि उसने की जो मूव है ये परमानेंट है या टेम्परेरी उसने ये हरकत की है। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट of that move on the market share as well as on profit. Will competitors respond, कि आपका जो competitor जो है वो भी तो लो कंपटीशन में, क्या वो आपके इस प्राइस चेंज के साथ वो भी कोई अपनी को मूव दिखाएगा या रिस्पॉन्ड करेगा? तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपने पूछने होते हैं। और उसके बाद ये कि इनका सॉल्यूशंस क्या है। रिड्यूस प्राइस टू मैच कंपटीशन, ठीक है, एक ये भी है कि आप अपनी प्राइस कम करें अगर आपका कंपटीशन है। मेंटेन प्राइस बट रेज द परसीव्ड वैल्यू थ्रू कम्युनिकेशन, देखिए एक तो ये नहीं कि आपके कंपटीटर ने प्राइस कम की आप भी कम कर दें, उसके मुकाबले पे आ जाएं। दूसरा ये है कि आप क्या नाम है अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं करते, आप अपनी प्राइस को मेंटेन करते हैं और साथ ही अपने जो उसके फीचर्स होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं कि दिस इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट एंड रिलायबल प्रोडक्ट, और आप उसको साथ कवर अप करते हैं कि जी इसकी जो परसीव्ड वैल्यू जो है ताकि कस्टमर ये समझे कि दिस इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट वाई दे आर नॉट रिड्यूसिंग प्राइस। दूसरे की प्रोडक्ट जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है इसलिए उसकी प्राइस कम कर दी है। थर्ड जो है एक और होता है कि इम्प्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज प्राइस। एक और भी होता है कि मूव कि आप अपनी प्रोडक्ट को मजीद को बेहतर कर लेते हैं, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर डाल देते हैं, साथ ही उसकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, कि आप ये इंप्रेशन देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो है ही, इसकी टारगेट मार्केट या इसकी पोजीशनिंग ही आप उसकी चेंज कर देते हैं। तो लॉन्च या लोअर प्राइस फाइटिंग ब्रांड, और एक ये भी होता है कि आप एक नया ब्रांड उसी जो है जहाँ पे आपका कंपटीटर जिस जब मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं आप उसी ही के लेवल का एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसको हम कहते हैं फाइटिंग ब्रांड, के वो उसके साथ बजाय इसके कि आपका मेन जो ब्रांड है वो सफ़र करे, आप एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको उसके साथ फाइटिंग पे लगा देते हैं, कंपटीशन में डाल देते हैं, और आप अपने ओरिजिनल ब्रांड का जो इमेज है उसको आप खराब नहीं करते या चेंज नहीं करते। अच्छा, यही चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये देखें कि रिस्पॉन्डिंग प्राइस चेंज में क्या है कि हैज़ कंपटीटर कट प्राइस, अगर आपके प्राइस उसने कम कर दी है तो अगर तो जी नो देन होल्ड करंट प्राइस, कंटिन्यू टू मॉनिटर कंपटीटर्स प्राइस, तो आपको भी कोई जरूरत नहीं, आप अपनी प्राइस होल्ड करें। लेकिन अगर उसने कर दिया तो येस देन विल लोअर प्राइस नेगेटिवली इफेक्ट और मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स, आपने ये देखना है कि वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं करेगी मार्केट शेयर और आपके प्रॉफिट को। अगर नो तो फिर आपने वही है कि होल्ड प्राइस, अगर येस है तो कैन शुड इफेक्टिव एक्शन बी टेकन, फिर आपने ये पूछना है कि जी अगर वो करेगी तो फिर हम क्या नाम है कोई डिसीजन लें। अगर आपका फिर जवाब नो है तो फिर तो वही बात है, लेकिन अगर आपका आंसर ये है कि येस वी हैव टू डू समथिंग, फिर वही आपके पास या तो आप रिड्यूस करेंगे प्राइस
या प्राइस रेस परसीव्ड वैल्यू कि आप उसकी परसीव्ड वैल्यू जो उसके फीचर्स जो से एडवांटेजेस जो से हैं उसकी जो खसूसियात हैं उसकी जो स्पेसिफिकेशन उनको हाईलाइट करते हैं, या आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही उसकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, या आप एक लो प्राइस फाइटिंग ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं उस ब्रांड के साथ कम्पीट करने के लिए। फिर इसी तरह हमने ये आउटलाइन की हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम पब्लिक पॉलिसी एंड प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस करेंगे। अब ये कि प्राइसिंग विद इन चैनल लेवल्स के प्राइस फिक्सिंग, सेलर्स मस्ट सेट प्राइसेस विदाउट टॉकिंग टू कंपीटिटर्स। अब यहाँ पर यह है कि पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप अपनी प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। ये नहीं है कि सारे कंपीटिटर्स मिलके, जिसको हम कहते हैं कार्टेल, नहीं बना सकते कि सारे कहेंगे जी बेचना है तो इस प्राइस पे बेचना है, इससे कम नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं दिस इज नॉट फेयर, ठीक है, मे बी इट्स इलीगल। सर्टन कंट्रीज में जो है ये इलीगल एक्टिविटी है, तो आपने प्राइस चेंज करनी है आप करें, लेकिन ये नहीं कि आप सारे कंपीटिटर्स के साथ मिलकर फिर अपनी प्राइस को डिसाइड करें। प्रीडेटरी प्राइसिंग, selling below cost with the intention of punishing a competitor or gaining higher long-term profits by putting competitors out of business। ये जो है प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स कि आप अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम पे बेच रहे हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका जो कंपीटिटर्स है उसको आप तंग करें, उसको परेशान करें, अल्टीमेटली वो क्या है, वो मार्केट से भाग जाए। जब वो भाग जाए तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को एक हायर प्राइस पे ज़्यादा मार्जिन के साथ बेच सके। अगेन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट नॉट लुक नाइस, ठीक है। तो इट्स अगेन द इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। यहाँ पर कुछ ये लॉज हैं, जैसे रॉबिन्सन पेटमैन एक्ट prevents unfair price discrimination by ensuring that the sellers offer the same price terms to customers at a given level of trade। यानी कि अमेरिका में ये है रॉबिन्सन पेटमैन एक्ट है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि आप अपनी जो प्राइसिंग जो है वो अपने सेलर्स को बताएं कि आप किस चीज़ की क्या यानी कि वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सेलर को आप कुछ और दे रहे हैं और किसी दूसरा जो है यानी कि जो आपका कस्टमर है जो आपको बाई करना चाहिए, सेलर एक बायर को कुछ और प्राइस दे रहा है, दूसरे को कोई और दे रहा है, तीसरे को कोई और दे रहा है। अगेन ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज कर सकते हैं अगर इफ द सेलर कैन प्रूव दैट कॉस्ट डिफर व्हेन सेलिंग टू डिफरेंट रिटेलर्स। अगर आप ये बता दें कि जब मैंने इसको अपनी प्रोडक्ट बेची तो मेरी कॉस्ट ये आ रही थी, इसको बेची तो मेरी कॉस्ट डिफरेंट आ रही थी, इसको बेची तो मेरी कॉस्ट और आ रही थी। अगर तो आपकी डिफरेंट कॉस्ट आ रही है तो फिर तो नेचुरली आप उसको डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप ये हरकत नहीं कर सकते। If the seller manufactures different qualities of the same product for different retailer, similarly अगर आपकी प्रोडक्ट जो है डिफरेंट क्वालिटीज की है, then yes you can charge a different price, but if the product is the same quality then you can't charge different prices from different customers or retailers। Pricing cross channel levels, retail or resale price maintenance is when a manufacturer require a dealer to charge a specific retail price for its product। बाज़ औक़ात जो है वो डीलर जो है प्राइस फिक्स कर देता है कि दिस इज द प्राइस दैट यू विल चार्ज फ्रॉम योर अल्टीमेट कस्टमर। अगर तो इस किस्म का दिस इज रियल और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कि आपने उसको कह दिया कि जी यही प्राइस है, आपने यही चार्ज करनी, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। फिर प्राइसिंग अक्रॉस चैनल लेवल में वही डिसेप्टिव प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ सेलर स्टेट्स प्राइसेस और प्राइस सेविंग दैट मिसलीड कंज्यूमर्स और आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल टू कंज्यूमर। कि अगर वो कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जहाँ पे एक्चुअल प्राइस नहीं बता रहा है, जो उसकी हिडन कॉस्ट को शेयर नहीं कर रहा, तो ये डिसेप्टिव प्राइसिंग है और ये जो है ये भी कोई एक्सेप्टेबल या अच्छी बात नहीं है। स्कैनर फ्रॉड, फेलियर्स ऑफ द सेलर्स टू एंटर करंट और सेल्स प्राइस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। एक ये भी होता है स्कैनर फ्रॉड, ये है कि जी आपने वहाँ पर तो सेल लगाई हुई है लेकिन आपने उसको किया नहीं हुआ, और जब आपका स्कैनर जो है वो वही प्राइस चार्ज कर रहा है, वो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है। वहाँ पर आप डिस्प्ले कर रहे हैं लेकिन जब वो उधर आया तो वहाँ पर आपने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ कंप्यूटर सिस्टम में, और
वो करंट प्राइस जो है वही चार्ज कर रहा है और सेल या डिस्काउंटेड प्राइस वो एंटर नहीं कर रहा। Price confusion results when firms employ pricing methods that make it difficult for consumers to understand what price they are really paying. बाज़ औक़ात प्राइसिंग इतनी कन्फ्यूजन उसमें होती है कि आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये एक्चुअल प्राइस कैसे बनी हुई, टैक्स इस पे कितना है, ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, या फिर अदर जो लाइव है क्या नाम एक्सपेंसेस हैं उन्होंने उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया है। वो आपको एक कंफ्यूजिंग सी प्राइस बता देते हैं कि जी इसमें सारा कोई टैक्स वगैरह भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये प्राइस है। अब आपको ये नहीं पता था प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, टैक्स कितना चार्ज किया है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, सर्विस एंड मेंटेनेंस के चार्जेस हैं या नहीं है। तो अगर इस किस्म की कोई है तो उसको हम कहते हैं कि प्राइस कंफ्यूजन। एंड दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर टुडेज लेक्चर। एंड फाइनली हमेशा की तरह आज की छोटी सी अच्छी सी बात, a beautiful life does not just happen. It is built daily with prayers, truth, sincerity, sacrifices and love. May a beautiful life be yours always. किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, हम सारे चाहते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो उसने कहा है कि कोई अच्छी ज़िंदगी ये नहीं है कि कोई ऐसे ही अच्छी ज़िंदगी बन जाती है। अच्छी ज़िंदगी के लिए उसने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप क्या करें। इसके मुताबिक आप सबसे पहले क्या है कि आप दुआ करें, आप अल्लाह मियाँ से दुआ करें अपने भी भले के लिए और दूसरों के भी भलाई के लिए। फिर उसके अलावा यह है कि झूठ नहीं बोलें, साफ बात करें, सच्ची बात करें सबके साथ। फिर बी सिंसियर, लोगों के साथ आप ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें। फिर उसके अलावा यह कि बाज़ औक़ात आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि आपका हक हो, लेकिन अगर आप खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसमें से एक ये भी चीज़ है कि इवन आप में सेक्रीफाइस का जज्बा होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप इंसानियत से प्यार करें, इंसान को इंसान समझें, ठीक है, रिगार्डलेस कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, आप उससे प्यार करें, उसको रिस्पेक्ट दें। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो यकीन माने कि एक खूबसूरत ज़िंदगी जो सी है वो आपके लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको खुश व खुर्म रखें, एक अच्छी ज़िंदगी हमेशा आपके साथ रहे और आपको तमाम दुखों, गमों और परेशानियों से बचा के रखे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।